غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اووس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل الغازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ تمہارا نام صاحب جی ہے؟ میرے بھائی کا انتقام ضرور لیجیے گا۔ جعفدار کا ہر سپاہی آپ کی کمان میں ہوگا۔ میں ترک سرداران سے ملاقات کر کے انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو سردار اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ پہلے ابو منصور کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ سلطان ہوا تو؟ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ علیار صاحب شہید ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں چافدار قبیلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے روح کو سکون عطا فرما، ان کے درجات کو حوصلہ عطا فرما، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آپ کی روح کو سکون دے، اللہ آپ کی روح کو سکون دے۔ ہر دل عزیز تھے۔ دین کے لیے آپ کی قربانیاں رائے گا نہیں چاہیے۔ جعفدار قبیلے کے معزز سرداران، بہنوں اور بھائیوں، علیار صاحب نے اپنی زندگی کی امانت کو اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے لوگوں کے لیے شرف و ناموس اور عزت کے ساتھ بہادرانہ طور پر وقف کیا، لیکن انہوں نے آپ کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے بے شمار تجاویز چھوڑی ہیں۔ آپ کو انہیں محفوظ کر لینا چاہیے، اور یہ ہرگز نہ بھولیے گا کہ ان کی یادیں امانت ہیں آپ کے پاس، سرمایہ ہے آپ کا۔
याद रखिएगा हमेशा। वो आपके सरदार और मेरे भाई थे, मेरे लिए माँ थे, मेरे बाबा की जगह थे, मेरे गम को बांटकर मुझे फिक्रों से आजाद करने वाले बहादुर इंसान थे। मेरे भाई इस दुनिया में अपनी हुज्जत तमाम कर चुके हैं, अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हुज्जत तमाम करें। हमें मजबूत रहना होगा, उनकी राह पर चलकर अपने कबीले को, अखलाकियात को और इत्तेहाद को महफूज रखेंगे। हमारा शौक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आप सब जान लेंगे, हमारा कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। सरदार के इंतखाब तक मेरे भाई की अमानत मेरी जिम्मेदारी होगी। उसी ने पैदा किया है और उसी की तरफ लौटकर जाना है। जनाब, कतरीना साहिबा ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। तो बताओ क्या कहलवाया उसने? अमीर सादुद्दीन हांदली बाजार गए थे, मगर फौरन ही वापस लौट गए। अमीर सादुद्दीन कहा तुमने? खुश आमदीद अमीर सादुद्दीन। हमारा भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। एक एक करके जाहिर हो रहे हैं सब। नीयत वासे है इनकी, जंग तो जरूर होगी, और ऐसी जंग जो तुर्क हमेशा याद रखेंगे। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اللہ کے لیے، درود و سلام رسول اللہ کے لیے. اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا اپنی دعائیں شہید کے سپرد کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں. سپرد کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں. سپرد کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو. آمین. والدہ، میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ گندوز، بھائی سو رہا ہے، آہستہ بات کرو. یہ بچہ تو مجھ سے بالکل نہیں ملتا. ارے میرے پیارے بیٹے، یہاں بیٹھو. تم بھی پہلے اسی کی طرح تھے، پھر تم بڑے ہو گئے اور بڑے بھائی بن گئے. تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں تو سپاہیوں کی تربیت کرتا ہوں نا، کیسے اس کا خیال رکھوں گا میں؟ وہ تو میں جانتی ہوں، اور بہت اچھی تربیت کرتے ہو سپاہیوں کی. اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سپاہی سمجھو تم، تاکہ دونوں مل کے اپنے بابا کے مقصد میں ساتھ دے سکو. اگر وہ میرے لشکر میں ہوا تو ضرور کروں گا. یہاں آؤ. سردار کے بیٹے گندوز، تمہارے بابا سرداروں کے سردار ہیں. علاؤدین چچا،
हलीमा सुल्तान, खैरियत है ना? आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। नहीं, ठीक हूं मैं, बस कुछ याद आ गया था। आप थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर लें, बच्चे को मैं देख लूंगी। शुक्रिया हाफसा, ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। उम्र इल्म के लिए सर्व कर दी, न वालिदा न बाबा के साथ वक्त गुजारा। इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में ही रहे, पूरी जिंदगी परदेस में गुजार दी। जब हम उनकी कबीले वापसी पर खुश थे, अच्छा वक्त देखने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। देखो बेटी, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और वहीं लौट के जाना है। आलियार ने इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी, इसमें कोई शुबा नहीं है हायमा खानम। अब से मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगी। उनकी अमानत की हिफाजत फर्ज है मुझ पर। मजबूत बनाऊंगी मैं अपने कबीले को इंशाअल्लाह। उनका दोस्त मेरा दोस्त होगा और उनका दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए बेटी तुम्हें। हम हमेशा साथ खड़े हैं तुम्हारे। आज से तुम्हारा एक भाई और भी है, अर्तुरुल, और तुम्हारी बहन हलीमा है। अगर कबूल करो तो बेटी, मुझे अपनी मां समझ सकती हो तुम। मेरी प्यारी बेटी असलियान, खुश रहो हमेशा। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। आलियार से जब पहली बार मुलाकात हुई तो उस वक्त ही मालूम हो गया था कि वह कितना नर्म दिल है। अर्तुरुल सरदार आलियार साहब के ताउन से ही तुर्क कबाइल को मुत्तहद करने में कामयाब हुए हैं। जन्नत में उनके दर्जात बुलंद हों। अब मैं तन्हा नहीं हूं बिल्कुल भी। अर्तुरुल भाई और आप मेरे साथ हैं, जान गई हूं मैं। मेरा कबीला आपका कबीला है, मेरी इज्जत आपकी इज्जत, मेरा शर्फ आपका शर्फ। हाजिर हो सकता हूँ असलिहान खातून? तशरीफ ले आइए अमीर सादतीन। एक बार फिर ताज़ियत कबूल करो बेटी। अभी इजाजत चाहूंगी मैं। हम सब के लिए यह बहुत बड़ा दुख है। हायमा खातून, बिस्मिल्लाह। बैठ जाओ असलिहान, बैठो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ताज़ियत कबूल करो मेरी। तुमने इस कर्ब से गुजरने के बावजूद हालात का बहुत दिलेरी से मुकाबला किया है। अल्लाह तुम्हें सब्र और हौसला अता फरमाए। और दूसरी तरफ उराल, उस गद्दार की हरकतों के बाद तुमने
कितनी बहादुरी दिखाई उसके मामले में मैं जानता हूं। ओराल को उसके किए की सजा मिल चुकी है मीर सादुद्दीन। और आलियार भाई की जहां तक बात है, मुझे इस कबीले का नायब मुकर्रर किया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता, इस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा जायज हक है। सरदार के इंतखाब के बाद भी मैं अपने कबीले का ख्याल रखूंगी। जाफदार कबीले को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो असलियान? जानती हूं अमीर सादुद्दीन। बाबा की दरखास्त को तस्लीम करते हुए जब आपका रिश्ता कबूल किया था, उस वक्त मेरे 2 भाई थे। उन पर एतमाद था मुझे। उनमें से एक शहीद और दूसरा हलाक हो गया। अपने भाई का इंतकाम पूरा होने तक मैं अपने कबीले को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस भी इस कबीले में लेना चाहती हूँ, समझ जाए। शिद्दत गम की वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो असलियान खातून। तुमने मेरी ज़ौजा बनने का वादा किया था मुझसे, अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारने का वादा। कुछ याद आया तुम्हें? मुझे याद दिलाना भी आता है। मैं माजरत चाहती हूँ अमीर सादुद्दीन। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम एक औरत की हैसियत से इतने बड़े कबीले को कैसे संभाल पाओगी? आसान समझा है तुमने? हाँ, जिस तरह हाइमा खानम ने अपने कबीले को संभाला था, अल्लाह की मदद से मैं भी अपने कबीले को संभालूंगी। और वैसे भी अर्तुरुल साहब हर जगह मेरे साथ होंगे। अर्तुरुल? अर्तुरुल? अर्तुरुल, हाँ। मेरा फैसला हतमी है। आप जैसे अमीर को अपने शायान शान मुझसे बेहतर और काबिल खातून मिल सकती है अमीर सादुद्दीन। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, क्योंकि कम से कम एक दिन मैं अपने भाई के सोग में गुजारना चाहती हूँ। आज नहीं तो कल मुझे अपने मासूम भाई का इंतकाम लेने के लिए अर्तुरुल साहब से इत्तेहाद रखना है। मालूम है मुझे, तुमने ये सब गम की वजह से कहा। वक्त के साथ ये तो कम हो जाएगा, मुझे यकीन है। और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा गलती का। तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझे, चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए, मैं मुंतजिर रहूंगा। सोच लो अच्छी तरह। चलता हूं मैं। अगर अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है, तो फिर एकतरीना हमारी सल्तनत की किस्मत बदल डालेगी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना निकोलस? मुझे कोई शुबा नहीं इस बारे में। एकतरीना आपके लिए अजीम फतह के दरवाजे खोल देगी। एकतरीना के सीधे रास्ते पर आने की खुशी है मुझे। आपने एक नाउमीद औरत को दोबारा जिंदा कर दिया।
बस उसने एक तुर्क पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की थी। आपकी वजह से उसकी गलती की इस्लाह हो गई। अक्लमंद है वो, इसलिए। अक्लमंद औरतें ही सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। मुझे मालूम है निकोलस। तो फिर बताओ मुझे, क्या मुझे उसे अपने करीब रखना चाहिए? मेरे ख्याल से आप उसे अपने करीब रख सकते हैं। वो एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से है, इसलिए वो हर लिहाज से आप जैसे हाकिम के लिए मुनासिब रहेगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ताज़ियत कबूल करे भाई। ताज़ियत कबूल करे भाइयों। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जानदार साहब गुजर गए, वो उराल बदबख्त भी हलाक हो गया, और अब हमारे सरदार भी शहीद हो गए। अब हम बिल्कुल तनहा हो गए। अब हमारा चौबदार कबीला बगैर सरदार के है। हमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई, मेरे भाइयों, हम सब एक हैं। आलियार भाई हमारे भी सरदार थे, इसी तरह अर्तुगरुल भाई तुम्हारे भी सरदार हैं। इस तरह मायूस ना हो। ये सूरत हाल मायूस कौन है बमसी भाई? कबीले का सरदार होता है, सरबराह होता है। बगैर सरदार के कबीला तबाह हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तशरीफ लाना शर्फ है हमारे लिए। आइए। मौत हिजरत है जाने वाले के लिए, और रह जाने वालों के लिए सोग है, लेकिन शहीद होने वाले का कोई सोग नहीं होता। मोहतरम, जब इत्तेहाद मजबूत हो गया, कबीले से गद्दारों का खात्मा हो गया, अमन व अमान कायम हो गया, तो हमारे सरदार ना रहे, हम बेयारो मददगार हो गए। अब हमारा क्या होगा? मेरे फर्जंदो, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेला है आप सब ने। अजीम मकासद के लिए कुर्बानियां दरकार होती हैं। इस्लाम के अव्वलीन दिनों में बहुत से सहाबाए कराम शहीद हो गए। बद्र की जंग में, ओहद की जंग में और खंदक की जंग में। नेक मकासद के लिए हजरत हमजा जैसे, जाफर बिन अबू तालिब जैसे, अम्मार जैसे, यासिर जैसे न जाने कितने असहाब शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने वाले कम न हुए। आप साहिबान भी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए और नेक मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं, लेकिन इस बात को कभी नजरअंदाज न करना। कमान को जितना जोर से खींचोगे, तीर उतना ही दूर जाएगा। दुश्मन जितना तुम्हारी जानिब बढ़ेगा, तुम्हें उतनी ही अजियत पहुंचाएगा, लेकिन तुम उतने ही मजबूत होते जाओगे। जब हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से पर्दा फरमा गए, तो बहुत से मुसलमान मायूसी में घिर गए और सहाबा बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गए। उनके लिए इस गम को सहना मुश्किल था,
लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। और जब हजरत अबू बकर आपके चेहरे मुबारक को अपने हाथों में थामकर सहाबा से मुखातिब हुए और उन्होंने फरमाया कि जो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, जान ले कि हुजूर अब दुनिया में नहीं रहे। जो भी अल्लाह की इबादत और अहकामात पर अमल करता है, उसे मालूम हो कि अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और फिर सूरह आले इमरान की इस आयत को पढ़कर उन्होंने सुनाया, मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उनसे पहले भी दुनिया में कई पैगंबर भेजे गए। अगर वो मर जाएं या उन्हें मार दिया जाए तो क्या उनके जाने के बाद तुम वापस पलट जाओगे? याद रखो, जो भी वापस पलटेगा अल्लाह का इसमें कोई नुकसान नहीं। अल्लाह शुक्र करने वालों को इनाम से नवाजेगा। ये अल्फाज सुनने के बाद मायूस सहाबा ने अपने आप को संभाला और इस्लाम के उसूल को माना। उसके बाद दीन इस्लाम पूरे खित्ते में फैल गया, मजलूमों की उम्मीद बना, जालिम के लिए खौफ बना। सूरह आले इमरान में इरशाद होता है कि तुम कमजोर न पड़ जाना, न ही अफसोस करना। अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो हम तुम्हें गलबा अता करेंगे। अब हमें हजरत अली जैसा बहादुर चाहिए। अल्लाह की अमानत की हिफाजत करने वाले हुसैन इब्ने अली जैसे बहादुर की जरूरत है उम्मत को। अब आप ही उम्मीद हैं लोगों की। आपकी जिम्मेदारी जंग करना है मुस्तकबिल के लिए। कल तक आपके सरदार आलियार साहब थे और आज अर्तुगरुल साहब हैं। आप सबको चाहिए कि अपने लिए एक बहादुर और दानिशमंद सरदार चुने और उनके साथ मुनज़्ज़म होकर खड़े हो जाएं। वालिदा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। सो गया ये? कुर्बान जाऊं अपने शहजादे पे। सुबकदोश हो गए हम अपने आखिरी फर्ज से भी। आलियार मेरे लिए बेटों की तरह था। जब भी अर्तुगरुल के साथ देखती थी उसे बहुत खुशी होती थी मुझे। अर्तुगरुल के लिए भाई और मेरे लिए बेटा था वो। शहीदों के लिए मौत जिंदगी है वालिदा, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए शोक। मेरी इन आंखों ने बहुत से बहादुरों को शहीद होते देखा, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि आलियार मेरे दिल के कितने करीब था। यही अल्लाह की मर्जी थी वालिदा। आलियार साहब को शहादत नसीब हुई है। दुरुस्त कहा बेटी, दुरुस्त कहा। अल्लाह मकाम बुलंद करे उसका। आमीन। वालिदा, अबू मंसूर क्या जनाजे में मौजूद थे? हाँ बेटा थे, और वो अर्तुगरुल के साथ ही खड़े हुए थे। क्या तुम्हें अभी भी उन पर शक है?
वालिदा अबू मंसूर मुझे कोई आम ताजिर नहीं लगते। याद आ गया है मुझे कि वो कौन है। कौन है ये शख्स? सुल्तान अलाउद्दीन। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो हलीमा? कोई गलत फहमी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं वालिदा। मैंने सुल्तान बनने से पहले अपने चचा अलाउद्दीन को देखा था। पहचानती हूं मैं उन्हें। अमीर सादतीन की आमद की तवक्को कर रहे थे आप? नहीं, लेकिन उसकी आमद सूदमंद होगी। मैं आपको सरदार आला मुकर्रर कर रहा हूं, वो ये जान जाएगा। वापस लौटते वक्त सादतीन को मैं आपकी मदद के लिए यहीं छोड़ जाऊंगा। सुल्तान मुअज्जम, यहां तुम्हारी आमद का क्या सबब है सादतीन? असलहान खातून से मेरा निकाह मुकर्रर हुआ था सुल्तान मुअज्जम, लेकिन पहले उनके बाबा की वफात और अब आलियार साहब। अच्छा हुआ तुम आ गए। आलियार साहब के जनाजे में भी शिरकत हो गई। और ये कि अर्तुरुल साहब के साथ कई अहम मसलों पर मुशावरत के बाद कुछ फैसले किए हैं मैंने। अच्छा होगा कि तुम भी आगाह हो जाओ। इंशाअल्लाह खैर का वसीला होंगे ये फैसले। अर्तुरुल साहब अब से मेरी रियासत के सरदार आला होंगे। इस खत्ते का इंतजाम अब इनकी जिम्मेदारी है। मेरे लिए सल्तनत और मिल्लत की खिदमत बायस शर्फ होगी सुल्तान। सुल्तान ने यकीनन बहुत मुनासिब फैसला किया है। अर्तुरुल साहब जब से इस खत्ते में वारिद हुए हैं मेरी बसारत और बसीरत बने रहे हैं। इनकी फराहम करदा मालूमात मेरे लिए आगाही का बाइस बनी है। इसी बिना पर इनका बहुत एहतराम करता हूं मैं। अर्तुरुल साहब ने अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से अंजाम दी हैं। और अब मैं सुल्तान की दी गई जिम्मेदारी को भी बखूबी अदा करूंगा अमीर सादतीन। आपका हुक्म सराखों पर सुल्तान मुअज्जम। अर्तुरुल साहब सल्तनत के लिए अपनी सदाकत और लियाकत के साथ पूरी दयानतदारी से इस मनसब को निभाएंगे और मैं खुद हमेशा इनके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं फौरन हानली बाजार जाकर आप लोगों से मुशावरत करना चाहता हूं सियासी उमूर पर। उसके बाद आप तुर्क कबाइल के सरदारान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उन सरदारान से मैं मुलाकात करूंगा और मैं उन्हें अपने फैसले से बजाते खुद आगाह करूंगा।
अभी तक कोई खबर नहीं आई। आ जाएगी निकोलस, सब्र करो। इस्तकामत से काम लेना ही वक्त का तकाजा है, क्योंकि सब्र में ही कामयाबी है। कामयाब ना हो सकी वो अगर? सबको उराल की बीवी की सराय में मौजूदगी की खबर है। कामयाब ना हो सकी तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी फतह की राह में एक और शख्स कुर्बान हो जाएगा, और वो ताजिर कौन है कभी मालूम नहीं कर पाएंगे। अमीर सादतीन यूं ही नहीं आया यहां पर। अमीर सादतीन रोशनी के पीछे चलने वाले परवाने की तरह है, बेमकसद वो कहीं नहीं जाता। और अगर हमारे बादशाह की कही बात सच निकली तो हम उनकी रोशनियों को हमेशा के लिए गुल कर देंगे निकोलस। तो फिर उम्मीद करते हैं एकतरीना हमारी मतलूबा खबर हम तक लाए। मेहमानों के लिए मुतबादिल खैमों का इंतजाम कर दिया है। सराय में सिर्फ अबू मंसूर और अमीर हजरत कयाम फरमाएंगे। ये इंतजामात किसके लिए है? यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन के लिए। तुम्हें यकीन है? मेरी अंकुशतरी का ये जहर सुल्तान के खाने में मौत बनकर उतरता चला जाएगा। उस वक्त आनन फानन तुम्हारी सारी खुद एतमादी हवा हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।